Hello everyone. So let us continue with our lecture of squares and square roots. This is part 2 of squares and square roots. Okay, so we will understand some more concept of squares and square roots in this video lecture. Okay, so let us start. So first of all we will understand that how many natural numbers can exist between two consecutive square numbers. Two consecutive square numbers या perfect squares के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो निकालेंगे. जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 35 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर. ओके, सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट टुडे वी विल स्टडी इज टू फाइंड numbers between to find numbers between two consecutive square numbers. Two consecutive square numbers. Okay, so consecutive square numbers are those numbers that occur one after the other, like 4 square, 5 square, 5 square, 6 square, 6 square, 7 square, okay, 10 square, 11 square. ठीक है, so write it down. Let n square and n plus 1 whole square be two consecutive square numbers, then number of natural numbers between them is equal to 2 into n. ठीक है, 2 into n. So we will understand this through an example, है ना. Through an example you will understand the concept better. ठीक है, so n could be any natural number. ठीक है, so अगर हम लोग को निकालना है कि how many natural numbers exist between 10 square and 11 square, so the value of n will be 10 and 10 plus 1 11 square. ठीक है, जैसे for example if I say that find number of natural numbers between 35 square and 36 square. We have to find the number of natural numbers between 35 square and 36 square. Both are square numbers, both are perfect squares. ठीक है, ये perfect square क्यों है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, watch the previous video lecture, है ना. And this why this is a perfect square, because both the numbers can be expressed as a square of some number. ठीक है, so 35 can be written as 35 into 35 square, and this is 36 into 36. Okay, so we have to find the number of natural numbers between 35 square and 36 square. ठीक है, so how you will find this out. ठीक है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई n and n plus 1. ठीक है, तो n और n plus 1 क्या है वो आप जानते ही हैं. दिस इज n, 35 इज n स्क्वायर, है ना. यहाँ स्क्वायर लगा है, इससे कंपेयर करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी.
और 36 क्या आ जाएगी, n प्लस 1, 35 प्लस 1 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ n इज इन दिस केस इज 35, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ यू से सो in this case n is equal to 35, hence in this case n is equal to 35, hence number of natural numbers between these two square numbers will be number of natural numbers, क्या हो जाएगा बेटा, 2 into n, that is equal to 2 into 35, or you can say 70. So number of natural numbers इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है। यू कैन डू दिस वर्बली ऑल्सो, ओके। 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, n की जो वहाँ कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। तो 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 198 नेचुरल नंबर्स विल लाई बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, ओके। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, दिस इज आवर फर्स्ट फैक्ट, और यू कैन से दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ द वीडियो लेक्चर, ठीक है। इसको मैं रब कर लूँगा। तो यू कैन फाइंड, नाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव आर दोज नंबर्स दैट अगर वन आफ्टर द अदर, तो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, जो इनके बीच में कोई और स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट, राइट इट डाउन, एनी स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर एक ही चीज होती है। एनी स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन या कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। दिस इज द मोर मैथमेटिकल वर्ड, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स starting from 1, से स्टार्ट करके, है ना, आप कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, ठीक है, 1 स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर नंबर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1, ओके। 2 स्क्वायर किया आपने, ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 4, and 4 can be written as 1 plus 3, ठीक है। So we have expressed square of 2 as sum of 2 odd natural numbers starting from 1. Similarly, अगर हम लोग यहाँ पे 3 स्क्वायर करें तो it is 9, so 9 can be written as 9 plus 3 plus 5, okay। 4 स्क्वायर करें यहाँ 16 आ जाएगा, जिसका रिटर्न है 1 plus 3 plus 5, और आगे क्या करेंगे इसमें 7, आप ऐड करिए 16 ही आंसर आएगा। 16, 1, 4, 9, 16 ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना। सिमिलरली 5 स्क्वायर 25, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1, दिस कैन बी रिटन एज 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, सबको आप ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 6 स्क्वायर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो। रिवर्स प्रोसेस आप
से हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी विल डू अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन। एक्सप्रेस 64 एज सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। ठीक है, एक्सप्रेस 64 as sum of 8 odd numbers। 8 odd numbers में 64 को एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो 64 8 स्क्वायर है 64 and this can be written as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, द क्वेश्चन माइट मतलब कम अराइज इन योर माइंड डेट टिल व्हाट ऑड नंबर्स वी हैव टू गो। ठीक है, तो आपको कहाँ तक जाना है आप यहाँ पे देखिए। तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इस सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 9, इनको ऐड करिए तो 9 आया। 9 plus 7 कितना आया, 16 आया। 16 plus 9 कितना आया, 25। 25 plus 11 36। 36 plus 13 कितना आया, 49। 49 plus 15 करेंगे तो इट इज 64। ठीक है, तो टिल वेयर यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टिल 8 फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स तक आप जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप इस स्क्वायर नंबर को जिस भी स्मॉल नंबर के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर, इसको आपने 8 स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 8 आ रहा है। तो आप कहाँ तक जाएंगे, 8 नंबर्स तक जाएंगे। यू विल हैव टू ऐड ऑल द ऑड नंबर्स। हाउ मेनी, 8 फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। ठीक है, so you will get first, if you add first 8 odd numbers you will get 64 as your answer. Okay, if you add first 8 odd numbers you will get 64 as your answer. Okay, so आपने 64, you have expressed 64 as the sum of first odd natural numbers. ठीक है, so this is the second concept. ठीक है, now let us understand the third concept. Third concept is, write it down. A square of any odd number greater than 1 can be expressed as a sum of 2 consecutive natural numbers. A square number, write it down, square, a square of any odd number, a square of any odd number of any odd number, a square of any odd number greater than 1 can be expressed as sum of 2 consecutive natural numbers. Can be expressed as sum of 2 consecutive natural numbers. ठीक है, sum of 2 consecutive natural numbers, but the condition is that it should be a square of odd number greater than 1. ठीक है, तो 1 भी odd है, 1 को नहीं लेना है, 3 से करेंगे हम लोग शुरुआत इसकी। ठीक है, 3 से, so let us understand this. ठीक है, so 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, and 9 can be expressed as a sum of 2
sum of two consecutive natural numbers. ठीक है. Similarly 4 square, 4 is not odd number. Okay, so हम लोग 5 लेंगे. 5 square 25, so 25 can also be written as 12 plus 13. ठीक है. Another odd number you will take like 7 का स्क्वायर करेंगे, this can be written as, ठीक है, 24 plus 25. ठीक है. So these are some of the properties of स्क्वायर नंबर्स. ठीक है. 11 स्क्वायर करेंगे. ठीक है. ये भी क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किया 121 आया, एंड 121 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 प्लस 61. ठीक है. समझ में आ रहा है? So please make a note of this. This is also very important. ठीक है. Fourth is a concept of Vedic math also. ठीक है. Square of a number. ठीक है. With unit digit 5. ठीक है. With unit digit, square of a number with unit digit 5. ठीक है. So you can easily calculate square of a number which has a unit digit 5. Suppose if I take 25 square. ठीक है. So आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड 25 इंटू 2 नंबर्स. ठीक है. इसमें आपको 2 डिजिट्स में डिवाइड कर देंगे. वैसे ये 5 क्या है, इट इज एट यूनिट्स प्लेस एंड 2 इज एट टेंस प्लेस. ओके. सो यू हाईलाइट दिस 2. ठीक है. ऑन द एक्सट्रीम राइट यू विल स्क्वायर द नंबर प्रेजेंट एट यूनिट्स प्लेस. ठीक है. तो वो कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, एंड द नंबर दैट इज प्रेजेंट एट टेंस प्लेस विल बी मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर. ठीक है. तो 2 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, 3 होता है. तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू 3 6. और वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, आफ्टर 25. ठीक है. दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द नंबर has a unit digit 5. ठीक है. Now if I take another number, you can take any number. ठीक है. Suppose if I take 75, so 75 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है. So this 75 is made up of 2 digits 7 and 5. तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, and you will multiply 7 with its consecutive number. Multiplying 7 with its consecutive number means that you are multiplying 7 with 8. तो 7 इंटू 8 56 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हो, 95 के लिए भी कर सकते हो, 95 स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, एंड 9 विल बी मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर. तो 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 90. ठीक है. ये आप कर सकते हो. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट नंबर्स ऑल्सो. ठीक है. 3 डिजिट नंबर में क्या करेंगे, सपोज इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस 105 स्क्वायर. ओके. तो यू विल ब्रेक दिस नंबर. आप इसको ऐसे अज्यूम करोगे कि ये नंबर जो है वो 2 डिजिट से बना हुआ है. बेसिकली 10 डिजिट नहीं है, पर तब भी हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये नंबर आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए हैं. यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, एंड द अदर नंबर इज 10. ठीक है. तो यूनिट डिजिट में 5 है, तो 5 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा. यस या नो, है ना. यहाँ पे 25 हो जाएगा. नाउ 10 विल बी मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर. तो 10 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, डेट कम्स आफ्टर 10. वो क्या होता है, 11 होता है. तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. तो आप ये लिख दो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉर्टकट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स विच हैव अ यूनिट डिजिट 5. ठीक है. तो इसमें कोई ऐसा आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. Now let us understand another concept which is called Pythagorean triplet. Okay.
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर दो सेट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ two numbers, when the square of two numbers becomes equal to the square of some other higher number, then that group of number or that set of number is called Pythagorean triplet, ठीक है। For example, if I take 3 का स्क्वायर करें तो it is 9, 4 का स्क्वायर करें तो it is 16 and 5 का स्क्वायर करें तो it is 25, ठीक है। तो the sum of the squares of these two numbers is always equal to this number, ठीक है। So 9 plus 16 is equal to 25, okay। This implies, इसमें क्या हो जाएगा, 3, 4 and 5, ठीक है। 9, 16, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, 3, 4 and 5 है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 3, 4, 5 इज अ सेट ऑफ नंबर विच इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। वाई? बिकॉज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, दीज टू नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो हम लोग का 5 है, ठीक है। वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, लाइक 5 स्क्वायर करें 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 स्क्वायर करें तो 144 आ जाएगा, एंड 13 स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोगों को आप चेक करिए तो वही हो रहा है, 25 + 144, ठीक है। तो 25 + 144 इज इक्वल टू 169, ठीक है। स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, the sum of squares of two numbers is always equal to the third square of the third number, ठीक है। थर्ड नंबर बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये कितना हो जाएगा, 5, 12 and 13 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको भी लिख दीजिए यहाँ पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दिस इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। और ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो देयर आर इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके आगे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, 9, 40, 41 भी होता है, 11, 60, 61 भी होता है, 12, 35, 37 भी होता है, ठीक है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let us understand the generalized Pythagorean triplet, ठीक है। Generalized Pythagorean triplet involves what? Variables, ठीक है। So there is always a particular combination that always forms a Pythagorean triplet, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to memorize it, ठीक है। पहले समझिए, समझने के बाद आप उसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, so let n be any natural number, let n be any natural number, let n be any natural number, let n be any natural number greater than 1, let n be any natural number greater than 1, then 2m m square minus 1, m square plus 1, 2m m square minus 1, m square plus 1 will always form a Pythagorean triplet, ठीक है। So n is what? n is any natural number which is greater than 1, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर which is greater than 1, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, n की वैल्यू n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उससे आगे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो
कुछ और पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेंगे, 3 पुट करेंगे तो कुछ और बनेंगे, 4 पुट करेंगे कुछ और बनेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. So you will get many Pythagorean triplets if you put the value of n, and the only condition is that m is greater than 1. M is a natural number, this is the first condition, and the second condition is m is greater than 1. ठीक है. So I hope this video lecture will be helpful to you. ठीक है. This is part 2 of our lecture series, which is called squares and square roots. ठीक है. Please make a note of this. Okay, thank you class.